Hello students, myself Sachindra Kumar Suman. I am a chemistry faculty and today we are going to discuss a topic that is carbon chronicles. आपके बुक में ये किस नाम से चैप्टर होगा एनसीईआरटी में? It may be named as carbon and its compound. So there are some certain topics that we would discuss today. Okay. So now let's move forward and see what topics we will be covering. The first topic that is it is about carbon and its property. Second topic covalent bonds. Third topic would be hydrocarbon and the last topic that we will discuss is isomers. This is an important topic, so we will discuss about it carefully. Okay. Now let's move towards the topic. So we know that there are many elements in the periodic table. Okay. Now why are we discussing only about carbon? It must be having some unique ability. So we may see that carbon is a unique element capable of forming 4 covalent bonds. So now let's first move to the configuration of carbon. So what is the atomic number of carbon class? It is 6. So if I may draw the subshells, it may be arranged at 2 in the first shell because we know that the K shell can only accommodate 2 electrons. And after that in the L shell it is having 4 electrons. We know that if it is having less than 4, it loses electrons and it is generally metals. Okay. Now if it is having more than 4 electrons, it gains electrons. Okay, and they are generally non-metals. So why are we discussing about this? Because we know that now we are having an exam number 4. So it can neither lose nor gain because it will require high energy to either release electrons or to gain electrons. So what does carbon does here? It basically shares its electrons. Okay, so how does it share it? So it shares electrons and it has two main features. The first feature is tetravalency and the second feature is catenation. So what is tetravalency? Tetra means 4. Valency is the valency of the element. So it is having 4 valency. Okay, and catenation means self-linking property. Okay, so these are the two main features of carbon, why we are talking about this element right now, and the reason why there are so many compounds of carbon in the nature. Okay, so what do we know about tetravalency here? Carbon is having 4 electrons in its outermost shell. Okay, it is having 4 electrons. So if I may draw the structure, it may be written as carbon and it is having 4 electrons in its outermost shell. Okay. Now let's move. Now carbon want to complete its octet to become noble gas, to get the noble gas configuration. Okay. Now carbon has the ability to share it with other 4 carbon electrons to complete its octet. Okay. Now this property of carbon allows it to make a long carbon chain. Okay, so that is why carbon has so many compounds of its own. And the other property of carbon is that it can also attach with some element, those who require a single element or more than that. Now if we talk hydrogen, atomic number 1. Okay, now if I may talk carbon requires 1 electron and hydrogen also want to loses 1 electron. So carbon can bond simply with hydrogen. This is about its tetravalency. And what does catenation means here? Catenation means self-linking property of carbon. That carbon can link with other carbon atom also. Okay. Now we will read forward. This versatility allows it to create a lot of molecules. From complex biomolecules, carbon's ability is to form simple bond, which makes it essential for life. Okay. Now I guess you might be familiar with carbon. Now I may talk about the word bonds. Okay. So the next slide is about bonds. Now what is chemical bond? Chemical bonds are the forces that hold atoms together. What are chemical bonds? These are the forces that hold atoms together. Now we might discuss about 2 different kinds of bond. The first one is ionic bond and the second one is covalent bond. Now what is ionic bond and what is covalent bond? Now let's see this.
आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली अगर कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, उसके बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कंपाउंड फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है? लूज करने की वजह से और गेन करने की वजह से। अब देखो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है या अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या करेगा? किस तरह का बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अब कार्बन की किस वजह से है नहीं, क्योंकि वो ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन जो तरह का बॉन्ड बनाता है जहां पे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोलता है भाई तुम भी रख लो, थोड़ा सा मेरे को भी चाहिए, तुम भी रख लो, मेरा बॉन्ड कंप्लीट करना है, उस तरह का बॉन्ड क्या होगा हमारा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है यहाँ पे? शेयरिंग। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह, एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को फुल्ली ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, बस क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है कि तुम भी लो, मेरे को भी काम है, मेरे को भी अपना शेल कंप्लीट करना है, तुम भी अपना शेल कंप्लीट कर लो। ठीक है। तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवैलेंट। आयनिक में क्या होता है? लूज या गेन से लेन देन, कुछ भी अगर हो रहा है, अगर दे रहा है तो भी, ले रहा है तो भी। ठीक। In carbon compounds, we primarily encounter covalent bonds. Understanding these bonds is crucial for grasping how carbon atoms interact and form diverse structures. तो हम लोगों का भी क्या डिस्कस करना है कि कार्बन कंपाउंड्स जो है वो आपस में इतना बॉन्ड बना क्यों रहे हैं। ठीक। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। चलो, तो कार्बन क्रॉनिकल्स वाले चैप्टर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोकार्बन के बारे में। वर्ड तो फेमिलियर होगा। तो हाइड्रोकार्बन होता क्या क्लास? तो अगर हम लोग पहले ये देखें हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन एक वर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पे, कुछ गेस करने की कोशिश करो। हाइड्रो क्या हुआ? एक वर्ड आता है हाइड्रोजन। कार्बन क्या हुआ? कार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या हुआ इन टोटल? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट ऑल कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग सोली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कोई और एलिमेंट नहीं, दो एलिमेंट बस। पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट हमारा कार्बन। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, बहुत तरह के बॉन्ड शेयर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड शेयर हो सकते हैं, पहला दोनों लोगों के बीच में एक बॉन्ड शेयर हो सकता है जहां पर बस एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है। ठीक। अभी सिंगल बॉन्ड हुए। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कार्बन की एक और प्रॉपर्टी के बारे में, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था क्लास? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता था? कार्बन लॉन्ग चेन बनाना। ठीक है। तो ये कार्बन, ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। क्यों? इसमें एक कार्बन है C और हाइड्रोजन कितना है? 4। C1H4 1 को हम लोग लिखते नहीं है क्लास। ठीक है। जनरली हम लोग 1 इग्नोर कर रहे हैं। हम लिख किस तरह का इसको? CH4। तो हम लोग इसमें 3-4 टॉपिक जो कवर करेंगे। फर्स्ट इज अल्केन्स, सेकंड अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो अब ये 3 नए वर्ड्स हैं क्या? ठीक। अगर मैं बात करूं तो अल्केन एक वर्ड है ANES। ठीक। तो मैं फर्स्ट ये डिस्कस करता हूं अबाउट अल्केन। ठीक। चलो, मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, दूसरा कार्बन है। मैं उनके बीच में एक सिंपल बॉन्ड बना कर दिखाता हूं तुम लोगों को। एक कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन हुआ। क्या दोनों का शेल कंप्लीट है? नहीं है। दोनों को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं, तो बॉन्ड किसका किसका बनेगा? हाइड्रोजन और कार्बन का। ठीक। अब हमें क्या लिख रहा है? एक सिंगल डॉट क्या बता रहा है? दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है? दोनों के पास रिस्पेक्टिवली 3-3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन के जगह हमारे पास क्या आ जाएंगे क्लास? हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे हाइड्रोजन। अब इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है क्लास? एक चीज ध्यान दे, सिंगल लाइन खींचा है मैंने। सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड वाले जितने कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन्स। ठीक है। तो ये हमारे बारे में क्या हुआ? ये हुआ एल्केन। एल्केन मींस सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है। तो जिस किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और बाकी एटम्स हाइड्रोजन के अटैच है हमारे, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एल्केन। एल्केन के बाद सेकंड टॉपिक में मूव करते हैं। क्या था हमारे पास क्लास? वो था अल्कीन। अल्कीन क्या होता है? अल्कीन देखो, अब हम लोगों ने क्या डाला? कार्बन एक था, दो कार्बन थे और दोनों के बीच में एक बॉन्ड था। वो क्या था? सिंगल बॉन्ड। अब देखो, एक मैं नया चीज करता हूं। एक कार्बन है,
दो लाइन आ गया बीच में। अब दो लाइन आ गया इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से क्या हुआ, इनके दो दो इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए। अब अगर इनके दो दो इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए, इनका सिंगल तो ही दो इलेक्ट्रॉन बचे, तब इन दो जगह पे क्या आ जाते हैं हमारे पास, दो दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और इनका नाम क्या हो जाता है, अल्कीन। तो जब हमारे पास डबल बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड अल्कीन। अब अगर क्लास में यहीं पे एक और काम करूं, ट्रिपल बॉन्ड बना दूं। ट्रिपल बॉन्ड जब अगर मेरे पास हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्काइंस, ठीक है। तो हमारे को इसको क्या कहते हैं, अल्काइंस। तो हम लोगों ने क्या समझा सिंपली, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब चलो क्लास में आप बोलोगे सर कि मेरे को तो पता चल गया कि सर कार्बन दो है, ठीक। अगर सिंगल बॉन्ड आया तो मेरा अल्केन है, सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड है तो हमारा अल्कीन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारा अल्काइन है। अब सर मैं को कैलकुलेट कैसे करूं, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि सर मेरे पास है 5 कार्बन, ठीक, और उनके एक कार्बन के बीच में आ गया है डबल बॉन्ड, ठीक। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसके पास हाइड्रोजन कितने आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सबको कैलकुलेट करने के लिए एक इजी सा फॉर्मूला है क्लास, ठीक है। ज्यादा कोई हाई लेवल की केमिस्ट्री नहीं है, इजी फॉर्मूला है। तो अगर मैं अल्केन का बात करूं तो अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, ठीक। अब मैं चेक करता हूँ इसको एक बार कैसे बनेगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया था क्लास, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग देखो, दो कार्बन था, कितने हाइड्रोजन अटैच हुए थे इनके साथ, 3, ठीक। अब मैं n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, तो Cn कितना है हमारे पास, 2। अब चेक करते हैं क्लास, n = 2, कार्बन कितना हुआ, C2, H2n+2, 2 के जगह पे 2, 2 2 4 + 2 6, H6। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है हमारे पास। अब देखो कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा क्या है, अगर मैं बोलूं इस पे, अगर मेरे पास n की जगह पे कोई भी नंबर रिप्लेस कर दूं, जैसे कि मैं कर दूं C4, ठीक है। तो अब चेक कर ले रहा हूं कितना है, अगर मेरे पास कार्बन 4 है तो अल्केन के केस में कितना बनेगा, देखो C4 है, हमारे पास एक फॉर्मूला है क्लास, मैं आपको ऊपर लिख दे रहा हूं, Cn+2, ठीक है। तो कितना आ गया, C4, H कितना हो गया, 4 2 8 + 2 10, H कितना आएगा, 10। चलो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं क्लास, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन अटैच किया हम लोगों ने बॉन्ड से इनको, हर एक को हाइड्रोजन देते जाओ इनका बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। सबके पास 4 बॉन्ड हो रहे हैं क्लास, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके पास 4 है। हाइड्रोजन पुटअप करते जाता हूं मैं, कैलकुलेट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली क्लास हमारे पास एल्कीन के लिए भी एक फॉर्मूला है। एल्कीन के लिए क्या फॉर्मूला है क्लास, CnH2n, सिंपल। अब H2n का मतलब क्या हुआ, सिमिलरली मैं पुट अप करके देखता हूं। C अगर मेरे सर देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास n = 2 है, n = 2 है तो कैसे होगा, कार्बन एटम के साथ 2, H2 का मतलब n का कितना मतलब है 4। चलो इसका स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। C डबल बॉन्ड C, दो एटम्स तो इसके यूज हो गए, अब कितने फ्री एटम्स बचेंगे, बस दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना आया क्लास, H4, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 2। सिमिलरली अगर मैं इस n को रिप्लेस कर दूं यहां पे 4, n = 4, कितना आएगा, C4H, 4 2 8। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लास, अब इसका फटाफट, 1 2 3 4। हम लोगों ने क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एल्कीन का, तो क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड। अब इसको कितने कार्बन चाहिए शेल कंप्लीट करने के लिए, 2 होना चाहिए, 1 2। इसको कितने चाहिए, 1 2 3, तो इसके यूज्ड है, कितना बचा, 1, तो हमें कितना चाहिए, 1। चलिए हाइड्रोजन दिया मैंने, चलो क्लास एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने आए, H8,
लास्टली जो क्लास हमारे पास एक फॉर्मूला बचता है वो है अल्काइन का। अल्काइन के केस में क्या है हमारे पास CnH2n -2। ठीक, अब मैं डायरेक्टली इसमें आता हूँ 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इफ आवर n इज इक्वल टू 4 तो C4H 2 4 जा 8 -2 6। चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 1 4 हो गया। इसको कितना कार्बन चाहिए? सिंगल कार्बन, सिंगल एटम चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन इसके तो शेल कंप्लीट है। नाउ लेट्स कैलकुलेट क्लास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास फोर्थ कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड क्या आया? अल्काइन। तो हमें क्या पता चले इनके पास भी चाहिए 4 नंबर ऑफ, ये इसको चाहिए 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन द टॉपिक एंड द टॉपिक इज अबाउट आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होता है? देखो क्लास, अब मैं बात करूं, घर पे रहते हो, ऐसे नहीं होता वीकेंड्स पे पापा का मन करता है कि ये सामान यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे रख देता हूँ, होता है। ठीक है, तब उस केस में क्या कर रहे हैं आप? सामान तो सेम है आपके पास, घर का साइज भी सेम है, ना घर का साइज बढ़ रहा है ना सामान चेंज हो रहा है। सो इन दैट केस क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट। क्या हो रहा है वर्ड? रीअरेंजमेंट। अब इस रीअरेंजमेंट के केस में क्या होता है क्लास? एक सामान दूसरे जगह पे, पर क्या है हमारे पास? स्पेस भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, कार्बन भी सेम कुछ करता है। ठीक है, अब कार्बन एक हाइड्रोकार्बन अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो क्या करता है बेसिकली, हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले इससे। आइसोमर्स आर द कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्लास, अगर अब मैं बात करूं एग्जांपल्स के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करने में ज्यादा मजा आएगा। अब मैं एक कंपाउंड लेता हूं क्लास अबाउट अ कार्बन एटम हैविंग 4 मॉलिक्यूल्स, 4 कार्बन है हमारे पास, C4। अल्केन के केस में बात कर रहे हैं क्लास। अगर मैं बात करूं अल्केन के साथ, तो मेरे पास C4 है तो H कितना आएगा? 10। वी हैव द फॉर्मूला CnH2n + 2। H कितना आ गया? 10। ठीक है, चलो इसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। इसका एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं, क्यों मन कर रहा है? ठीक है, अब फॉर्मूला अगर मैं इसका चेंज करना चाहूं तो क्या हो? क्या हमें क्या लिखा हुआ है? एक बार डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर चेंज करके देखता हूं क्लासेस का, क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंज होगा? 1 2 3 1 1 2 3। नाउ लेट्स कैलकुलेट क्लास। कलर चेंज कर लेते हैं, सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं। क्या हुआ? बस स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइसोमर्स क्या होता है बेसिकली? आइसोमर्स आर दोस्त जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं? चेंज। ठीक है, दिस फेनोमेना लीड्स टू डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो इससे तो हम लोग मान सकते हैं घर का अगर सामान कोई दूसरी जगह रखते हो क्या होता है? घर सुंदर दिखता होगा थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं तो क्या होगा? हमारे को एक अलग तरीके का केमिकल प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंडिंग फॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर इसके आगे बात करूं हम लोग थोड़े से और टॉपिक के बारे में। सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन द कनेक्टिविटी ऑफ देयर एटम्स, दिस मींस दैट द सेम एटम्स कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट वे लीडिंग टू डिस्टिंक्ट कंपाउंड्स। अब क्या होता है? अगर मैं कोई एटम को चेंज करके कहीं और डाल रहा हूं, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, तो क्या होगा इससे क्लास? इससे एक फेनोमेना तो कंटिन्यूअसली लीड करेगा जो है एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर कोई नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है क्लास? चलो, तो अगर आज मैं बात करूं तो हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो कौन से थे हमारे पास? कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टी। ओके, तो कार्बन के बारे में हमने क्या जाना? कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4, इसके पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिस कैरेक्टरिस्टिक का क्या नाम है? टेट्रावैलेंसी। और सेकंड क्या नाम है?
कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी क्या था, इसके पास 4 वैलेंसी होता है, तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं होता इसके पास कि भाई मैंने तुमको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो तुम ही मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। कार्बन चाहे हाइड्रोजन के साथ बनाए, कार्बन चाहे क्लोरीन के साथ बनाए, कार्बन चाहे सोडियम के साथ बनाए, कार्बन को कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है, एक कार्बन बोलता है तू मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, और कार्बन के साथ एक लंबा सा चेन का फॉर्मेशन हो जाता है क्लास। ठीक है, सेकेंड हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े। क्या पता चला था, हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड। हाइड्रोजन और कार्बन के जब कभी कंपाउंड्स बनते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लास्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या थे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो चलो क्लास, आज की क्लास में हम लोगों ने ये 4 टॉपिक डिस्कस किए, आगे हम लोग और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना था, थैंक यू क्लास।